Hi, मैं हूँ अनुराग द डूड और ये है प्रिया माय दीवानी. And we're here to take you on an incredible journey. Wait. Don't forget to like, share and comment on our video. Also, click on the subscribe button. And for more videos on ZZest, don't forget to hit the bell icon. पिछले 20 साल से हम साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं. नए places, नए cultures, नया food. Then we discover कैसे एक चीज दूसरे से connected है. The what, where, when, why of food. That's our passion. सतरंगी food. Atrangi connection. Join us on Dude और दीवानी. Anu, have you finished dusting? हाँ, yeah baby, almost done. गर्मा गर्म भुट्टा. Wow. पर ये तो बॉयल भुट्टा है यार. भुट्टा कौन बॉयल करता है यार? ये तो हमेशा कोयला पे इसको रोस्ट करते हैं. It's a Bangalore thing. We love steamed stuff. Besides, it's healthier. Unlike your deep fried bread pakoda and samosa gimosa. Take. वो मूड खराब कर दिया. You guys boil everything यार. मतलब कॉर्न भी, पीनट भी, बीन्स भी, सब कुछ बॉईल करते हो. The very foundation of this city lies on boiled beans. मतलब? According to folklore, the Hoysala king Veerabalala II was out on a hunt in the forest. He got lost and separated from his retinue. So hungry, he wandered for hours and finally stumbled upon this old lady in a hut in the forest. And she offered him a bowl of boiled beans, bendakalu. Thanks. Instead of simply saying Tumba thanks, like you, the king in gratitude established a tiny village called Bendakar Uru in honor of the old lady and the humble meal. Over time, it became Bengaluru, and the Brits called it Bangalore. End of story. क्या करूं इसका मैं? कोरियर. क्या दो? Yadu, अनुराग. Anurag, please go get your stuff. यार खाते वक्त डिस्टर्बेंस. I hate this. यार तुमसे अच्छा तो वो ओबावा थी यार. यू नो ओबावा नो, जिसका पति चित्रदुर्गा फोर्ट में गार्ड था. तो एक दिन इसी तरह ओबावा अपने पति के लिए खाना परोसी. लंच ब्रेक में आया तो बाहर वो गई पानी लाने के लिए. तो उसने देखा चित्रदुर्गा फोर्ट के किले के जो दीवार है ना, उसमें एक छेद है और उसके अंदर से वो हैदर अली के ट्रूप्स घुस रहे थे. भाग के गई अपने स्वामी को बताने के लिए. उसने देखा स्वामी तो बैठ के खाना खा रहे हैं, अब उनको कैसे डिस्टर्ब करे. तुम्हारी तरफ से डिस्टर्ब थोड़ी किया. वो उठाई अपना ओनक के, वो जिससे मिर्ची कूटते हैं, और वो लेके गई. एक एक करके सोल्जर्स के माथे पे मारा. सबका सर फट गया. एक एक करके उसने बॉडी अंदर लाया. और जब तक स्वामी जी का लंच खत्म होता, पानी पी के डकार मार के वो पहुंचते, सोल्जर्स का इतना बड़ा ढेर हो गया था वहां पे. और इसको फिर फोकलोर में ओनक्के ओबावा का दर्जा दिया गया. और उस छोटी सी खिड़की का नाम ओनक्के ओबावा किंडी है. By the way, it's Onke Obawa. I know the Obawa story and I know all about Chitradurga Fort and I've even crawled out of the TV, okay? Have you heard of Bakasura? The Asura with this enormous appetite. He was killed by Bhima in Kaivara, 75 kilometers from Bangalore. And going by the amount of water you drink, you're Jalasura, his brother. पानी पीने को बुरा नहीं होता है. बहुत सी कहानियां इस तरह फूड के बारे में. वो शबरी की बेर वाली जो कथा है, अरे जो किष्किंधा कांड में हुआ था, वो यहीं पे तो था, हम्पी में आने गुंडी में. शबरी एक एक बेर चक्कर के सिर्फ मीठी बेर देती थी श्री राम को.
इतनी तो हॉस्पिटैलिटी थी। And what about that famous meal of sage Agastya and the two demon brothers, Vatapi and Ilvala? Vatapi had the shape-shifting boon. He could transform himself into anything. And the brothers hatched a plan. They would invite guests and feed them a meal. Vatapi would transform himself into a goat. They would make a curry and the guests would eat it. And right after that, Ilvala would call out, Vatapi, Atra Gacha, which is Vatapi, Bahar Nikal. आज जुम्मा है। Yeah, something like that. And he would come bursting out of their stomach, and the poor souls would die. And he would have fun. They killed many people like that. क्या गजब का स्कैम था यार। साला मेरे को तो अब मटन करी खाने में डर लगेगा। Listen to what happened after that. क्या हुआ? Sage Agastya landed up. And they tried the same trick with him. But he had the Divya Drishti. He knew exactly what they were up to. So right after eating, Sage Agastya rubbed his belly and said, Vatapi Jirno Bhava, which is Vatapi get digested. And Vatapi died inside of him. He burnt Ilvala to ashes. And Badami's old name was Vatapi. The two hills over there are considered to be the bodies of the demon brothers. And the lake is called Agastya Tirtha. ये बहुत हो गया तुम्हारा साउथ का, हाँ? कुछ हमारा भी सुनो। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पता है तुमको? चंद्रगुप्त मौर्य वो खिचड़ी की। Tell? तो हुआ यूं कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटे थे और उन्होंने डायरेक्ट पाटलिपुत्रा पे अटैक कर दिया। फिर क्या था? हार गए, बुरी तरह हारे। छिपते छिपाते गांव गांव जा रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि एक औरत अपने बेटे को कस के डांट रही है क्योंकि उसने खिचड़ी खाते वक्त अपने हाथ जला लिए। बोलती है, स्टूपिड फेलो, तुम सीधे अपना हाथ उसमें डाल दिया और हाथ को जला लिया, बिल्कुल लाइक चंद्रगुप्त मौर्य। तुमको अकल होना चाहिए कि खिचड़ी के साइड में वो ज्यादा कूल होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को आइडिया आया और फिर उसने बाकी के जो गांव हैं बाहर बाहर के उसको पहले कैप्चर किया और फिर उसने पाटलिपुत्रा पे चढ़ाई की। Acha? But you forgot something. क्या? When Chandragupta Maurya renounced his kingdom, he became a Jain follower. And he came direct to Karnataka, settled down in Shravanabeлагala. Oh, तो क्या हुआ? He was one of the first Biharis to migrate to Karnataka. और वहां पे भी ना उनको कुछ खाना वाना तो मिला नहीं। He did salli khana, which means no khana, and gave up his life. Are you trying to tell me something? नहीं बेबी, I'm just saying कि उनके पांव के निशान अभी भी वहां पे हैं, and that hill is called Chandragiri after Chandragupta Maurya. I can leave your footprints also there. चल clean कर. अरे, एक बात बताओ, तुमको पता है श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों चढ़ाते हैं? 52 weeks in a year. 56. I don't know. Tell. मैं बताता हूं। तो बात तब की है जब मथुरा वृंदावन के लोग अच्छी फसल के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छे से हो और उनको मनाने के लिए वो खूब सारा खाना पीना अरेंज करते थे। श्री कृष्ण को ये बहुत बुरा लगा कि बेचारे गरीब गांव वालों पे तो बड़ा अन्याय है ये, तो उन्होंने गांव वालों को मना किया पूजा करने से और वहां इंद्र भगवान को गुस्सा आया। उन्होंने ऊपर से नलका ऑन कर दिया। इतनी जोर की बारिश हुई कि लगा कि अब तो पूरा गांव ही डूब जाएगा। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया और सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए और फिर इस तरह वो बच गए। एक हफ्ते में इंद्र भगवान की टैंकी खाली हो गई। Tanky. But what's the connection with 56 भोग? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। तो श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार खाना खाते थे। Oh. हाँ, और एक हफ्ते तक उन्होंने वो सारे मील्स फोरगो किए। तो 7 8 जा 56. 7 8 जा 56. हाँ, हेंस 56 भोग। Oh. और यहाँ पे ये गरीब दिन में बस 3 बार मील खाता है और वो भी खुद बनाना पड़ता है। Those who love eating should not complain about cooking.
During Agyatwas, Bhima took on the role of Ballava, the cook. Oh, ये भीमा's आंध्रा रेस्टोरेंट उसी का है क्या? जाके पूछ. फ्री मैं सोच रहा हूँ इफ आई स्टार्ट अ रेस्टोरेंट मैं उसका क्या नाम रखूं? Simple. Anurag's Mess. Shut up, girl. This painting. Where the... Sorry, I'll take that again. बार बार कथा में विघ्न या जी Zest को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई नया वीडियो मिस ना हो।